बिस्मिल्लाह करें। जी मैडम। जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हुमैरा एंड यू? आई एम डॉक्टर सादिया। ओके सादिया, नाइस टू मीट यू एंड वेलकम टू द डिपार्टमेंट. थैंक यू। How is your training going on? इट्स गुड माशाल्लाह। Okay Sadia, if you feel any discomfort, you can communicate or discuss and ask any help if needed. Okay. ओके मैम। Okay Sarah, I can see that you are here to learn about the MBA, that is manual vacuum aspiration technique. Is that जी। so? यस मैम, दैट इज इट। Okay, may I know why specifically you want to learn about it? Yes, I saw my seniors. She was R4 and she was performing MBA. So I wanted to learn regarding MBA, that what is it and what should, Okay. yeah. Okay, Sadia, don't worry. Today we will discuss about the MBA technique, and by the end of the session, you are able to perform the manual vacuum aspiration. And manual vacuum aspiration, it's assembling and disassembling, demonstrate the cervical dilatation and aspiration technique, and and in the end, I will also provide you the video links, and I will invite you in the workshop where it's going on. Okay. Okay, ma'am. Okay, thank you. Okay. Sadia, before we learn, we should review the indication of the MBA. There are certain indication and the contraindication. We have to rule out the contraindication in the patient and review the indication, for which we have to take the short brief history from the patient, perform necessary examination and investigation, and then we proceed with the procedure if there are no contraindications. So indication of the MVA are, it is performed in the uterine if the uterine cavity is less than 12 centimeter in diameter, and there are no uterine anomalies, and patient is hemodynamically stable, and it is performed for the incomplete miscarriage, miscarriage, and for the failed medical termination of pregnancy, and also for taking the uterine endometrial biopsy. Hmm. Okay, and Okay. its contraindication include if there is severe anemia, if postpartum, the uterus is postpartum, and the uterine size is more 14 weeks gestation, and the retained product of conception are more than 5 centimeter in diameter, if there is any allergy or contraindication to the misoprostol or local anesthesia, or is there any coagulation disorder. Okay. So, can you repeat a few indication for me? Yes, ma'am. Like she is hemodynamically stable and she is like motivated and Okay, good, 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 yeah. Sadia, you are a quick learner. So, Mm. in the history, we will ask about the age of the patient, its parity, gestational age to confirm the and its mode of previous mode of delivery, its anti inter or the postpartum complication, and uterine surgery or uterine instrumentation, any bleeding disorder, any blood transfusion history, or the drug allergy. Okay, and in the examination, we will assess the general health of the patient by checking its vital and general look of the patient, and we will do the bimanual examination before performing the procedure to confirm the its uterine size and the cervical dilatation. Okay. Or baseline, and we do some baseline investigation, blood grouping, RH factor, CBC, recent CBC, and coagulation profile if the history is suggestive of the, for example, in cases of the miscarriage, we perform the coagulation profile. And Okay. STI screening in case of the severe infection, is the history suggestive of the severe infection. Okay, ma'am. Okay. Uh, okay, Sadia. MV is consists of the aspirator and the cannula. Mm. Aspirator. There are different sizes of the cannula, ranges from 4 to 12 millimeter in diameter,
and it has a marking up to 24 centimeter. Mhm. The first marking start with, sorry ma'am, कुछ कह रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ. Thank you. Okay, first marking started from 6 centimeter and then progressed to 1 centimeter and beyond. Okay, Okay. and the aspirator consists of valve as syringe with marking, and it has a capacity of 60 ml, and plunger. Plunger has a handle. It's a plunger O-ring and um, plunger and ma'am. Keep going on. It's okay. It's okay. Okay, okay, Sadia. Before performing the procedure, we have to take consent from the patient, Hmm. right? We Okay. have to explain the whole procedure, its advantages and disadvantages and complication, and follow procedure. And the afterward, we will discuss the contraception. And after, at the time of discharge, we will give some advice regarding the post-operative care, Okay. right? Okay, ma'am. So in the preparation of the patient, after taking the written verbal consent, we advise the patient to take the oral analgesia or oral analgesic in the form of the either in the form of the naproxen 500 mg or the ibuprofen that is 200 to 400 mg orally before half an hour before the procedure. Okay. Right, and we can also give the misoprostol 400 microgram orally, vaginally, or sublingually, depending upon the condition of the cervix. Okay, ma'am. So it is a daycare procedure, and the patient can we will ask the patient to empty the bladder and place the patient in the lithotomy position, and then after cleaning and draping, we again do the bimanual examination to confirm our findings. Then we will introduce the cuscose speculum and then clean the cervix with the antiseptic solution in circular motion, starting from the midpoint and rotating in spiral fashion outward. Right, then hold the anterior lobe of the cervix with the Valsalem, and gentle traction is given. Then we prepare our apparatus, for which we introduce the plunger inside all the way inside the cylinder, and then a collar is inserted, and then pull the plunger back so that its wings, its arms are span out, and it snap out and rest on the plunger, rest on the cylinder base. Hence, the vacuum is created, and then we introduce the appropriate size of the cannula through the cervix into the uterine cavity gently. Don't thrust or push forcefully until it reaches the uterine fundus. Then we stabilize the cannula and attach the aspirator to the cannula horizontally, and then we release the clasp button so that a vacuum is created, and which is transferred from the cylinder to the uterine cavity, and we gently move the aspirator in 180-degree motion, and gently to and fro in and out motion, so that the uterine content are suction or evacuated into the cylinder, and then when we felt that is it filled or it is 80% filled, then we remove our aspirator, not the cannula. Right, and if the uterus is not empty, we felt this is not completely empty, then we again prepare the suction, and we introduce the aspirator attached to the cannula. Okay, Sadia, do you know what are the sign of completeness of the procedure? No, ma'am. Exactly, I don't know. Okay, Sadia, don't worry, I will tell you. Okay, if there are pink foam coming out through the cannula into the cylinder, or there is a gritty sensation, or when the uterus is felt to be hugged on the cannula, and when the patient felt the cramping, pain,
into the abdomen. Then this is the sign that the uterus is empty. So we remove the cannula and the aspirator, either attached to it, or first we remove the aspirator and then cannula, and then um, um, we pour this content of the uterus into the container to look for the visual inspection, to see any placental tissue or chorioniculum or the molar tissues. Right. And if we are not sure about the nature of the content, then we will pour the water or the vinegar solution to it, and then we inspect again. And if again we are not sure, then we send the sample for the histopathologic examination. Right, Satya? Okay, ma'am. Okay, Sadia. Then after the procedure, we have to monitor the patient in the recovery room for up to 1 to 2 hours to look for any sign of excessive bleeding, pain, or the sign of infections. Right? And Right. for the instrument, we disassemble the instrument aspirator cannula, soak in the warm water for up to 30 minutes, and warm soak in the water, and the add the detergent and scrub it. And it for the cleaning purpose, we do two types of disinfectant. uh, One is high dependency high level disinfectant, and the other is sterilization. In high level disinfectant, we soak the instrument. We boil the instrument for 20 minutes, and secondly, we soak the instrument in the 2% chlorine, 0.5% chlorine solution, and third, we soak it in the glutaraldehyde solution for 20 minutes. Okay, Sadia, are you following me? Yes, ma'am, I'm following you. Sadia, if you don't follow me, you can stop me at any time, okay? Okay. And for the sterilization, we autoclave it for 30 minutes under 121 degree temperature. And secondly, we can do the high level disinfection with the 0.5% chlorine solution for 30 minutes, for 10 hours, up to 10 hours. Right? Okay, for the instrumentation, we introduce and we handle the instrument with non-touch technique. Avoid contact between instrument and the non-sterile surfaces, right? Okay. Okay, then at the time of discharge, we document our finding, explain the procedure to the patient once the patient is stable, and then explain the red flag sign, like the excessive bleeding, excessive foul smelling, vaginal discharge, pain, fever. She should come immediately to the hospital. And as we already discussed the contraception, so if she is not willing for the contraception at that time, we can offer her later on. Okay, Sarah, at the same time, we can introduce I forgot to tell that at the same time, we can give the intrauterine contraceptive device for the contraception Yes. if the patient is willing. Yes. Okay. Okay. Yes. Then we will prescribe her oral analgesia in the form of ibuprofen or naproxen, 200 or 200 to 400 milligrams, 6 to 8 hourly, and oral antibiotic, that is azithromycin single dose, or the doxycycline 100 mg BD for 5 days or 1 week. We also advise her for the strenuous activities for up to 3 to 5 days, and avoid intercourse, dampen use, and the swimming for about 1 week. And as the fertility is returned within 4 weeks, so if she wants contraception, we advise the contraception. Right? Okay.
And the menstrual, we also tell her that she should not worry about the menstrual cycle. Her menstrual cycle will resume within 4 to 6 weeks. And हाँ and and she can come if the red flag sign occur, or routinely there is routinely no need for the follow-up visit if there is no complication. But if the complication arises, she can come at any time. Or is there any suspicion of the retained product of conception? So we can perform the urine pregnancy test at 6 weeks post procedure, or we can also perform the ultrasound at um, um, at about 4 to 6 weeks post procedure. Okay, and if the patient is having the negative blood group, so we will also be vigilant to administer the RH and Rufilec, RH and TD immunoglobulin. हाँ good Right? right Okay, Sadia, I think I'm clear to explain you the procedure. हाँ Uh, right? Anything you yes want to know? no ma'am, thank you so much, it was so kind of you. I understood all. Okay, Tara. Okay, Sadia, I'm giving you some video link, and I will also invite you if um, uh, there is workshop, hand-on workshop for the MBA, or you can visit at any time. Come to me to learn more thing about it. Okay? Okay, okay, thank you so much, ma'am. Okay, Sadia. Okay, Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Have a nice So, day. repeat your name, sorry. Dr. Umaira. Humaira. Okay, thank you so much, Humaira. Excellent presentation. Okay, Thank you, madam. मैं तो इतना excellent. नहीं, it's excellent, माशाल्लाह, more than I have expected. ठीक है, बहुत ही excellent presentation. थोड़ी बहुत अब मेरा टाइम है कि मैं थोड़ा और इसको पॉलिश करूं, ठीक है. ठीक है. सो थैंक यू जजाकल्ला मैडम. बहुत अच्छा, बहुत इंशाल्लाह यू विल डू इट. आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मैडम सेकंड होगा. इंशाल्लाह लास्ट ही होगा, ठीक है, खैर से पास हो इंशाल्लाह जाएगा मैडम. इंशाल्लाह. सो यू हैव द होल नॉलेज विद यू, ठीक है. आपका जो बैकग्राउंड क्लिनिकल नॉलेज है दैट्स परफेक्ट एंड अप टू डेट. अब खाली इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूंगी कि कुछ चीजें जो है वो नोट्स में मैम होती हैं. टाइम का बता दे. सॉरी मैडम, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. या टाइम का बता दे, मैंने टाइम नहीं नोट किया था. बहुत ज्यादा हुआ टाइम, लेकिन मैंने इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है. इट इज मोर देन 12 मिनट्स. सही. तो मैंने ओके मैम. इंटरप्ट नहीं किया बिकॉज यू यू आर इन फ्लो एंड इनिशियल डेज है, इनिशियल टास्क प्रेजेंटेशन हो रही है. तो इट्स ओके. सही है. आपको थोड़ी बहुत चीजें जो हेल्प आउट करेंगी वो यही है जो मैं आपको अभी बताती हूँ. लेट मी शेयर इट. ओके मैम. आपने जो है जाना नहीं है क्योंकि इसके बाद हम परफोरेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. क्लास में ही रहना है, अटेंटिव रहना है जब तक आप इसको देखें कि जो पॉइंट्स थे. सो माशाल्लाह वेरी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. इन बहुत अच्छा स्टार्ट लिया. जो टीचिंग का एक एस्पेक्ट होता है, आपको सबसे पहले अपना म्यूचुअल इंट्रोडक्शन देना होता है, और उसके बाद आप अपना स्क्रिप्ट बताते हो कि व्हाट आर एक्चुअली यू आर गोइंग टू कवर इन योर टुडेज टीचिंग. तो उसमें इन्होंने वेल कवर्ड माशाल्लाह. बेस्ट उनकी थी अप्रोच. उसके बाद जो है आपने जो होता है जो टॉपिक्स जो भी होता है, एक चीज आपने उसमें कभी भी मिस नहीं करनी. ऑल्दो ये टेम्पलेट जैसे कि ये है, इट इज हेयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू आउट, बट जो बेसिक होता है नेम एज मैरिटल स्टेटस वो आपने कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है. वहां से आपकी बहुत सारी इंडिकेशंस और कंट्रा इंडिकेशंस आती हैं जब आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हो. तो डेफिनेटली आप एक प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप हिस्ट्री लोगे उससे, तो हिस्ट्री की वही बातें आप उसी तरह से बताओगे कि आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन इंक्वायरिंग रिगार्डिंग हर नेम एज मैरिटल स्टेटस, हर एजुकेशन ऑक्यूपेशन पैरिटी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड हर ब्लड ग्रुप. अब यहीं पे आपको ब्लड ग्रुप वो फाइंडिंग वो चीजें मिल जाती हैं अगर ये स्ट्रक्चर डिस्कशन होता है. अदरवाइज एग्जामिनर या जिसको आप टीच कर रही हैं उसको भी समझ आ जाती है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पूछना चाहिए. तो ये चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है. फिर आप आते हो कि उस पेशेंट से आप सॉरी उस बंदे को जो आप टीच करवा रहे हो
उसको आप किस तरह से लेके चलते हो, आप टेम्पलेट वही फॉलो करते हो, अगर ऐसा ड्रिल जो कि परफॉर्म होता है ऑब्स के पेशेंट पे, आप वही ऑब्स की जो बेसिक टेम्पलेट है जिसमें हिस्ट्री आता है, एग्जामिनेशन आता है और उसका इन्वेस्टिगेशन आता है, तो वो टेम्पलेट आप उसी तरह से ही फॉलो करते हो एंड यू डिड इट वेरी वेल। तो आपने जो हिस्ट्री में पूछने की बातें हैं वो सारी आपने जबरदस्त पूछी, यू आर अप टू डेट विद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपने ली, ऑब्स्टेट्री ली, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आपने पूछे, उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, स्पेशली कोई उसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या नहीं है, एनीमिया, ड्रग एलर्जीज, ये सब आपने रूल आउट किया। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदर ऐड करें दैट इज हेडिंग वाइज जाए। ठीक है, आप जो है अंदर की जो उसकी पॉइंट्स होते हैं वो आप बता देती हैं, ठीक है, लेकिन जो उसकी हेडिंग होती है ना, अगर आप उसको बताएं तो वो चीज़ और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं आपको टीच करा रही हूँ, मैं बोलूंगी लुक आई विल इंक्वायर रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, पर्टिकुलरली आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग हर menstrual history, her date of last menstrual cycle, regularity of the cycles, and I will also inquire regarding her OBS history, that which gravida is she now, is she having any previous live birth babies or miscarriages or abortions? And I will also inquire regarding her presenting complaint that either she is having any vaginal bleeding or any kind of pain or any passage of tissues, और एन एज शी इज इन अर्ली प्रेगनेंसी में भी हाइपरेमेसिस वगैरह भी साथ में हो सकता है, वो चीजें। देन along with that I will inquire regarding her medical history, surgical history। कहने की बात यह है कि टॉपिक को जब आप बताते हो तो कोशिश करो उसको हेडिंग वाइज बताओ। ये एक बताने वाले की जो अंदाज है उसको बहुत ही खूबसूरत बनाता है। देन आप जो हो मूव करते हो, आपका जो मेथड था इट इज एक्सीलेंट, ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज योर मेथडोलॉजी। आपने पहले जो है इंडिकेशंस कंट्रा इंडिकेशंस बताई और फिर जाके आप हिस्ट्री की तरफ आए हो, तो इट्स ओके। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाजमी आप पहले ये बताओ या पहले वो, बात ये है कि आप कंप्लीट करो जो चीजें इसमें रिक्वायर्ड हैं वो कंप्लीट करो। तो टेम्पलेट मैं इसलिए कहती हूँ कि जब टेम्पलेट फॉलो कर लिया जाता है तो फिर उसमें कोई वो रहता नहीं है ना कि ये मिस हो जाए या वो मिस हो जाए, मिस होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो फिर आप जब सेकंड अप्रोच करते हो कि यस फॉर द प्रायर टू द MVA we have to examine the patient and we have to do certain investigations. You know, the examinations include the routine general physical examinations and certain important systemic examinations and the local or pelvic examination, वो आपने जबरदस्त बता दिया। एंड देन द रूटीन इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूड हर जो लोकल प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें ब्लड ग्रुप है, CBC है, जो उसका वायरल सीरोलॉजी है, ब्लड शुगर्स है, वो बताने के साथ फिर आप बताते हो देर आर सर्टेन अदर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। रूटीन को आप कभी मिस नहीं करते हो, ठीक है। फिर स्पेसिफिक में आप बताना शुरू कर देते हो कि लाइक वी वांट हर बीटा HCG लेवल और STI स्क्रीनिंग एंड इम्पोर्टेंटली द ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये बहुत ही इसके जो फोकस्ड और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें आ जाती है। फिर आप कहते हो कि after the investigations we also try to rule out certain indications and contraindications, or we have a certain important selection criteria of the MVA patient। अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया और इंडिकेशंस कंट्राइंडिकेशंस अगर हिस्ट्री से पहले भी बता दो वही बात है, अगर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद बता दो भी तो इट डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। यानी आपका निचोड़ यही है कि आप क्वेश्चंस के जरिए, आप एग्जामिनेशन के जरिए, आप इन्वेस्टिगेशन के जरिए उसकी जो कंट्रा इंडिकेशंस है वो रूल आउट कर देते हो, और जो क्राइटेरिया है कि इस पेशेंट के लिए MBS सूटेबल है या नहीं है आप वो सेलेक्ट कर लेते हो। तो बेसिक मकसद हमारे पास यही होता है। तो पहले बताओ या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कि MBA का जो सिलेक्शन जो कंट्रा इंडिकेशंस है वो क्या है, और जो MBA की सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है। सो यू आर हेयर विद मी, प्लीज रीड दीज कंट्रा इंडिकेशंस फॉर मी। Okay, madam. ओके, MBS contraindicated if the patient has panic attack, cervical stenosis, fibroid uterus which is more than 12 weeks, and uterine malformation, RPOCs which is more than 5 centimeter, postnatal RPOCs, and inability to tolerate the pelvic examination, uterine infections, allergy, and contraindication to the misoprostol or the local anesthesia, गुड। and also the coagulation disorder.
ओके वेट, नाउ इन कंट्राइंडिकेशंस में ऐसी कौन सी कंट्राइंडिकेशन है जो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, जिसके बाद तो आप कतन इसको करोगे ही नहीं, वो कौन सी है इन सब में से? मैम यूट्राइन मेलफॉर्मेशन। नो, द फर्स्ट वन इज पैनिक पैनिक अटैक। अटैक। ठीक है, द फर्स्ट वन, पेशेंट या तो कंसेंट नहीं कर रही या वो पैनिक अटैक्स होते हैं, उसको हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप बिल्कुल जो है वो टच नहीं करते हो। अदरवाइज सर्वाइकल स्टेनोसिस की भी कुछ हमारे पास है, प्रिपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, फाइब्रॉइड यूट्रस को ठीक है एमवीए नहीं करेंगे, बट अदर ऑप्शंस हम थोड़ा बहुत इनमें फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक वाइवा का रिकॉल क्वेश्चन भी है कि वो ऐसा कौन सा कंट्राइंडिकेशन है जो अगर हो तो बिल्कुल भी आप जो है पेशेंट का वो नहीं करोगे ना। तो उसका आंसर यही है कि द पेशेंट डजंट कंसेंट फॉर दैट और इधर शी इज हैविंग पैनिक अटैक्स, तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा ओके। उसके, हाँ नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया रीड करो। Okay, we select the patient on the basis of hemodynamic stability. हम्म, Patient should be paras, and if the nulliparas, she should be well motivated. हम्म, Her rump length should be less than 25 millimeter on ultrasound. And incomplete abortion with RPOC is less than 5 centimeter in diameter and no clinical sign of infections. एग्जैक्टली। नाउ यहाँ पे ये टेबल पढ़ाने का मकसद ये था आपसे कि आप अपना टाइम जब कोई टीचिंग कर रहे होते हो या कोई उसमें सेव कैसे करते हो अपना टाइम। तो कभी भी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि आप जब उस टाइम कोई वाइवा देते हो कुछ, तो आप अपनी जो हाथ है वो कोशिश करते हो बहुत ज्यादा आप हाथों का वो भी नहीं करते हो ना। इट लुक्स डिसेंट कि आप सही तरीके से बैठे होते हैं और आपके हाथ जो है वो इन कंट्रोल्ड होते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप अपना हाथ, फॉर एग्जांपल मैं अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड से होल्ड करके एंड आई कीप ऑन काउंटिंग कि मैंने जो है कॉम्प्लिकेशंस या कंट्राइंडिकेशंस या इंडिकेशंस या रिस्क फैक्टर्स जो भी हैं, मैं 3 से ज्यादा नहीं बताऊंगी, और 3 भी वो बताऊंगी जो टॉप के होंगे। ठीक है। तो जब मैं किसी चीज को प्रैक्टिस कर रही होंगी इसी तरह से, ये मेरा आखिर तक एग्जाम के आते आते ये रिफ्लेक्स बन जाएगा कि 3 इज द ओनली नंबर जिसके आगे मैं अपना जो है नेक्स्ट जो मेरा टारगेट होगा मैं उसकी तरफ बढ़ूंगी। तो इसमें अब जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबको बताने के बजाय इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्राउन रंप लेंथ को बिल्कुल मिस ना किया जाए। ठीक है, क्राउन रंप लेंथ ऐसा फैक्टर है कि अगर वो 25 से ज्यादा हो गया तो ऐसे पेशेंट्स को हम एमबीए नहीं करेंगे। और अगर हम एमबीए कर रहे हैं आरपीओसीज के लिए तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास लेस देन 5 सेंटीमीटर तक हो, अल्ट्रासाउंड पे हमने देख लिया हो। और तीसरा ये है कि पेशेंट इज, कोई भी इनमें से आप डाल दो, हेमोडायनेमिकल स्टेबल डाल दो, वेल मोटिवेटेड डाल दो, जैसे कि वो उसका अपोजिट है। ठीक है, वो डाल दिया तो मींस कहने का मकसद ये है, सारी लिस्ट बताने की नहीं होती है। आपने 3 3 करके किसी भी टीचिंग में किसी भी वाइवा में आपने बस 3 इंडिकेशंस कंट्रा इंडिकेशंस रिस्पेक्टर्स करके आप उसको आगे बढ़ जाते हो। सो दैट वाज रिगार्डिंग दीज इंडिकेशंस कंट्रा इंडिकेशंस। फिर आप उसके बाद एमबीए के जो कंपोनेंट्स है, आपने प्रेजेंट बहुत अच्छा किया। हेयर आई वांट टू पॉलिश यू, यहाँ पे जो एक चीज और इम्प्रूव की जा सकती थी वो ये थी कि आप कंपोनेंट्स को जो है वो सबसे पहले उसको बोलते सी, आप उसको कुछ दिखाते या इधर पिक्चर दिखाते या उसको कहते कि देखो, एग्जाम में ज्यादातर वो चीजें पड़ी होती हैं जो, फॉर एग्जांपल फॉर्सेप है, ड्रिल अगर हम कर रहे हैं तो वो पड़ा होगा, अगर कोई डमी है उसके ऊपर हमें कुछ रेस्टोरेशन परफॉर्म करना है तो वो होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने कुछ भी नहीं है या इमेज पड़ी होगी, तो आपने उसका जो है बेस्ट उसको यूटिलाइज करना है अपनी टीचिंग के दौरान। आप जो उसको बताते हो कि सी दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द थिंग, जैसे अब नाउ मैं एमबीए टीच करूंगी, इट इज सी इट इज एमबीए विच आई एम गोना टीच यू टुडे, कैन यू सी इट, उसको होल्ड करवाओ, उसके हाथ में पकड़वाओ। तुम्हारा मकसद सिर्फ अपने रटे रटाए नॉलेज को वर्क करना नहीं है, वहां पे ये देख रहे होंगे खासकर टीचिंग स्किल में कि तुम दूसरे को कितनी आसानी से टीच करा सकती हो। ठीक है, तो इसलिए इस डिफरेंस को समझो। इट इज नॉट ओनली रटिफिकेशन, इट इज हाउ यू टीच अदर्स। जैसे अब मैं आपको पढ़ाने के लिए अपनी कंप्लीट एक्सपर्टीज लाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें कलर्स ऐड करूँ, इसको मैं आपको फील करवाऊं, इसको मैं रीड करवाऊं, ताकि आप मेरे साथ इंटरेक्टेड रहो। वो यही स्किल्स एग्जैक्टली आपके वहां पे देख रहे होंगे कि फिजिकली आप क्या ऐसी
अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो, अपना क्या आप पोस्चर यूज करते हो, क्या आप एफर्ट्स करते हो कि दूसरे को आप आसानी से टीच करा सको। तो एग्जैक्टली exactly इसमें फिर आप क्या करते हो, वो जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी भी प्रेजेंटेशन में, किसी भी उसमें आप उसको डिवाइड कर देते हो हेडिंग्स में। जब आप एक दफा हेडिंग्स बता देते हो, आप उस चीज के बारे में भले ही कोई खास अंदर की बातें ना करो, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने हेडिंग बता दी, आपकी चेकलिस्ट वहीं पे कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज इट इज टॉक्स। आपके पास सिर्फ 7 से 8 मिनट है, ठीक है। तो आप इसी तरह उसको फिर डिवाइड करके किसी, इट्स द थिंग विच यूर होल्डिंग इज कॉल्ड एज एमवीए syringe. It is the actually the suction device in which we try to generate vacuum for aspiration. Okay, so you can see it is having labels on it, or it is having marking on it. It's only 60 ml capacity. Okay, so see, it is the plunger of this syringe. It fits inside the cylinder. Let me show you where is the cylinder. So let's see. Can you see the round thing that blackish in color? It is actually the O-ring of this syringe, which is important because it is a rubber-like thing and it ensures airtight seal for vacuum. सो कहने का मकसद ये है, आप जो भी चीज टीच करा रहे होगे उसकी हेडिंग्स याद रखना। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप अगर हेडिंग नहीं बताओगे, उस चीज की जो उतनी वैल्यू है, उसका चार्म है, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। और मेरा एडवाइस आप सबको ये है कि ये जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं जिनको हम इजी ले रहे होते हैं, इनका आना हमारे लिए खुश नसीबी है, क्योंकि ये हमें इतने ज्यादा मार्क्स लेने की कैपेसिटी दे देते हैं कि जहाँ पे अगर कोई मुश्किल सा एक स्टेशन आएगा, तो यहाँ से लिए हुए मार्क्स आपको वहां पे कंपनसेट कर देंगे। तो अपना बेस्ट एफर्ट, ये नहीं है कि इजी को पढ़ा ही नहीं और फिर एग्जाम के दिन ये फिर आप हैरान हो रहे हो कि अब क्या करूं, ये तो इतना आसान था एमबीए, मुझे क्या हो गया, मेरे मार्क्स क्यों कम आ गए। तो ये रीजन होती है। आसान चीज को भी आपने इग्नोर नहीं करना होता, उसको इतना पॉलिश कर दो कि वो आपको बाकी चीजों में हेल्प आउट कर दे। सेम इज द केस हियर। आपने हर चीज जो बताई उसमें आप उसकी एक इम्पॉर्टेंट उसका हेडिंग बता दिया, और हेडिंग बताने के साथ साथ आप उसको बता देते हो कि इसकी एडवांटेज क्या है। ठीक है, लाइक इसने जो है वैक्यूम जनरेट किया एस्पिरेशन के लिए, और इसने जो है ओ रिंग ने क्या किया, इसने एयर टाइट करवा दिया, सील क्रिएट करवा दिया। इस तरह करते करते आप अपना जो है वो चेकलिस्ट कंप्लीट कर देते। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जो चीजें आपके सामने हैं, इनकी स्क्रीनशॉट्स आप ले सकती हैं। ये लेक्चर अवेलेबल होगा यूट्यूब पे भी, तब भी आप ले सकते हैं। और नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। इट्स ओके, ठीक है, उसके बारे में आप फिक्र ना करें। इस चीज को गौर से पढ़ें, सुने, समझें। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आई एम वेटिंग। अगर नो है तो चैट बॉक्स में नो लिख दें। अच्छा। उसके बाद अब जब आपने उसकी सारी ये बता दी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, देन यू गिव अ स्लाइट टच। ओके, कैनुलास को थोड़ा बता दिया कि सी दीज आर देर आर डिफरेंट कैनुलास विच यू कैन सी, दीज आर मेड अप ऑफ रबर, and can you see they have markings on it? There are of different sizes. Let me tell you, this consists of these are actually from sizes for include 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and up till 12 mm. Okay, there are some double wall and there are certain one sided जिनमें सक्शन है, और कुछ में जो है डबल साइडेड है। थोड़ा बहुत आपने उस इंस्ट्रूमेंट का टच दे के उसको अपने हाथ में उसको होल्ड करवा के, अपने हाथ में होल्ड करके, थोड़ा बहुत उसकी मार्किंग्स वगैरह के बारे में जब आपने बता दिया, देन यू कैन मूव अहेड। सो यू नो, जैसे कैनुलाज में अभी वही मैं बता रही थी, अपर्चर्स है, देर आर सर्टेन ड्यूअल अपर्चर्स, or there are different sizes, 4 to 12 mm. They have color codes. They are specific in their length, that is 24 centimeter. Okay, अब जब जितने भी कैनुलाज हैं, उनकी लेंथ जो है वो एक है, अलग नहीं है। और आपने इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते दिखाते आप आ जाते हो, जो कंसेंट था वो हमने तकरीबन कर लिया है। अब आप आते हो प्रोसीजर के ऊपर कि व्हाट, लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द प्रोसीजर विच वी परफॉर्म फॉर manual vacuum aspiration. But before the procedure, we have certain pre-procedure preparations of the patient. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो किया, मैंने इसकी हेडिंग बोली, सही।
अब अगर मैं बोलती कि आई विल एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, आई विल प्रोवाइड पेन मैनेजमेंट, और अगर इस बीच में बेल बज जाती है तो ये मेरा पूरा रह जाएगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, आप हेडिंग बोलते हो। नोट्स जब भी बनाते हो हेडिंग वाइज बनाया करो। आप एक हेडिंग बनाते हो और उसके अंदर जो क्रिस्प उसकी चीज होती है उसको सिर्फ आप छोटा सा हाईलाइट कर देते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, पेन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको ड्रग और डोजेस की फिलहाल बताने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, बिकॉज आप इतना ज्यादा डिटेल चीजें आप नहीं बता सकते, आपका टाइम कम है। आप कहते हो आई विल डू प्री प्रोसीजर प्रिपरेशंस एंड फॉर दैट we have to administer prophylactic antibiotics, we have to care for the pain, do certain pain management for the patient, and then we have to check the equipment assembly. Is it either the aspirator is prepared and the proper cannula selection has been done according to the साइज ऑफ द गेस्टेशन है। ये छोटे छोटे आप पॉइंट्स हेडिंग वाइज बताते जाते हो। देन जो उसका नाम होगा वो आपने अपने हाथ पे या अपने पेज पे उसी टाइम लिख देना होता है कि वो आप भूल ना जाओ, सादिया जो है बाद में सारा ना हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट होता है कि आप कितने ओरिएंटेड हो मैडम पेशेंट। नाम तो बहुत ही भूल, बिल्कुल याद ही नहीं रहता भाई ये साहब। इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको, बिल्कुल इसको आप लाइट नहीं ले सकते हो। आप पेशेंट को अगर उसके अपने नाम से नहीं बुलाओगे वो हर चीज जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने किया। देन वील गो फॉर सर्वाइकल प्रिपरेशन दैट इंक्लूड्स क्लींजिंग ऑफ द सर्विक्स एंड गिविंग हर अ पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। अब तुम फिर अपना एक अंदाजा तुम्हें हो जाता है कि तुम शुरू से अगर तुम्हारा बहुत डिटेल में टाइम चला गया है तो तुम फिर इन अंदर के जंजाल में ही नहीं पड़ना। ठीक है, क्योंकि ये फिर आपका टाइम वेस्ट करेगी। आपने हेडिंग बता दिए, एग्जामिनर को ये पता है कि इस बच्ची को इतना पता है कि एंटीसेप्टिक देना होता है, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक देना होता है। ठीक है, और अगर तुम और खुद को वो करना चाहती हो कि डू यू वांट टू नो रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड डोजेजेस, शैल आई टेल यू, अगर उसकी की में था हाँ तो वो वहीं तुम्हें बोलेगी हाँ सही है। अगर उसकी की में नहीं था तुम यहाँ से आसानी से स्लिप होके अपना जो पूरा तुम्हारा वो है टास्क है वो कंप्लीट करोगी, क्योंकि तुम्हारा मकसद उसका चेकलिस्ट पूरा करना है। तुम्हारा मकसद जो तुम्हें याद है वो सुनाना नहीं है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। फिर आप आते हो कि दिस वी हैव टू डू सर्वाइकल डाइलेटेशन इन सर्टेन केसेस इन विच यूजुअली जो है नली पैरा और उस उनमें जरूरत होती है। वी कैन यूज मैकेनिकल डायलेटर्स एंड वी कैन डू प्रोग्रेसिव कैनुला डायलिटेशन, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो, और वो जो आपने ड्रग्स का कहा वो भी आप दे सकते हो। देन वी प्रिपेयर द एस्पायरेटर एंड वी गो फॉर द प्रोसीजर। जो हमारा प्रोसीजर है वो आप इसी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, उसमें बस ये हेडिंग्स बताओ। ठीक है, कि ताकि आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाए। वी टेक द प्रॉपर साइज कैनुला and we insert it through the cervix until it contacts the uterine fundus, and then we withdraw it for 1 to 2 centimeter. बस एक line is more than enough. Then we activate the suction device. How we prepare it, थोड़ा बहुत आपने touch दे दिया। Then we go for the evacuation. How we evacuate it? We actually rotate the cannula 180 degree or usually in clockwise or counterclockwise direction. Gently, gently हम उसको कर रहे होते हैं। Then your जो points थे, we continue it until sorry वो जो आपने बताया कि इसके भी जो पॉइंट्स हैं कि किस तरह से आप एश्योर करा देते हो कि आरपीओसीज जो है या प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसका बता दिया, और वो जिस तरीके से आपने मेरे साथ इंटरेक्ट किया दैट वाज एक्सीलेंट। ठीक है, देन वी डू सर्टेन पोस्ट एस्पिरेशन स्टेप्स। वी हैव टू मेक श्योर दैट द यूट्रस इज एम्प्टी ऑफ द गेस्टेशन सैक। हमें मकसद तो हमारा यही है ना कि चलो थोड़ा बहुत खून रह गया वो अलग बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे का पूरा हमने जो गेस्टेशन प्रोडक्ट्स हैं वो हमने छोड़ दिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाइवा में एग्जामिनर ने पूछा भी है। ये आप इसको अच्छे से समझ लें कि हम क्या करते हैं। आईपास का जो प्रोटोकॉल्स है, जो एमबीए की जो जितनी वर्कशॉप्स होती हैं उनमें बकायदा जो है एक शीशे का ट्रांसपेरेंट सा एक बाउल रखा जाता है, उसको वाटर से फिल किया जाता है। अगर किसी के पास थोड़ा विनेगर होता है तो उसमें ऐड कर देते हैं, अदरवाइज खाली पानी भी काफी है। हम जितने भी ये एस्पायरेटर्स होते हैं हम इसको
उसी जो कंटेनर है उसमें हम डाल देते हैं एंड वी विजुअलाइज इट, हम इसको देखते हैं। अब क्या होता है, जो कंटेंट्स होते हैं, गैस्ट्रेशन सैक होता है, ये आरपीओसीज होते हैं, खासकर रिलेटेड टू द विलाई, ये ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। और बाकी जो चीजें होती हैं जैसे बड़े बड़े क्लॉट्स और वो जो है पानी में नीचे बैठ जाते हैं। तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि आप वहीं पे श्योर हो जाते हो कि यस, जो कंसेप्टस था वो अब यूट्रस उससे जो है वो एम्प्टी हो चुका है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट, और ये याद रखना और बताने की चीज है, इसको मिस नहीं करना है। इसीलिए जब आप हेडिंग वाइज बताते हो तो एग्जामिनर भी तुम्हारी बात गौर से सुनता है कि अच्छा अब ये इस हेडिंग पे है, अब मुझे इस चेकलिस्ट पे जो है टिक टिक करना है। हेडिंग नहीं बताओगी उसको पता नहीं चलेगा मैं चेकलिस्ट के इस पोर्शन में हूँ, इस पोर्शन में हूँ, ये लड़की आगे जा रही है पीछे जा रही है कर क्या रही है। ठीक है, हमें हर हाल से अपने आप को सेफ साइड पे रखना होता है। फिर हम आते हैं, हम कहते हैं कि ओके यू नो we can, as we have met our patient, we have taken the history, we have taken the consent, and during that phase we must have talked about the contraception. If the patient has consented, then we can insert postpartum IUCD or any other contraception, or which she had consented. यानी शुरू उधर से हुआ है। हमने कंट्रासेप्शन डिस्कस हिस्ट्री से ही कर देना होता है उसको, जब हम प्रोसीजर्स और उसकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं ये उसी टाइम का होता है। लेकिन अब हम बोल इधर रहे हैं और उसको हम बता रहे हैं कि हमने ये उसी टाइम कर लिया। Then we provide a post-procedure care that in which we have to monitor for the bleeding and for pain. Regarding that analgesia, we can offer her Brufen. Ibuprofen is the drug of the choice. Then the patient has be shifted for monitoring. At the same time, हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो है इंस्ट्रूमेंट की जो उसके ऊपर अप्लाई हुए हैं हम उनकी प्रोसेसिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ ज्यादा ही उसको एलोबरेट कर दिया, मुझे नहीं लगता इसको इतना ज्यादा। जब आपने इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन कर लिया, इसमें दो हेडिंग्स आपने जरूर बता देनी है, दैट इज टू डीअसेंबल इट। ठीक है, डीअसेंबल करोगे तो आप स्टरलाइज करोगे। आपने वो जितने भी चीजों को एक दफा असेंबल किया होता है उनको डीअसेंबल करके, इंक्लूडिंग द एस्पायरेटर, कैनुला एंड बॉल्स, यू सेंड देम फॉर स्टरलाइजेशन। अब उसमें इतना खुद को फंसाओ नहीं। स्टरलाइजेशन दो तरीकों से होती है। ऑटोक्लेव वही है जो हम जनरली तमाम ओटी के और बाकी जो हमारे उसके लेबर रूम के इंस्ट्रूमेंट्स हो उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है क्लोरीन के साथ भी हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। क्लोरीन भी रूटीनली जहाँ पे छोटे छोटे लेबर रूम्स होते हैं, छोटा सेटअप होता है, उसमें क्लोरीन इज द फेवरेबल वन। ये है हमारे पास एक, बस इतना तुमने उसको बता दिया, सिर्फ नाम लिए, डिसअसेंबल एंड स्टेरिलाइज, इट इज मोर देन इनफ। उसके बाद क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम होता तो जैसे अब मैं कह रही हूँ मैंने 15 मिनट भी तुम्हारी बात सुन ली, क्योंकि आई एम गोइंग टू कि नो कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है कितना आता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है। देन आप उसको क्या करते हो, यू प्रोवाइड हर इमीडिएट पोस्ट प्रोसीजर। अब उसमें वो सारा जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन थी, डीब्रीफिंग थी, वो सारी आपने बताई, दैट वाज एक्सीलेंट, वो आपने बता दिए। देन यू हैव टू प्रोवाइड हर सर्टेन रेड फ्लैग साइंस, जो वो कभी नहीं मिस करना है। यू हैव सर्टेन रेड फ्लैग साइंस रिगार्डिंग द ब्लीडिंग एंड द पेन। यू हैव टू टेल हर दैट व्हाट इज द नॉर्मल वन एंड व्हाट इज एब नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल, अब उसको नॉर्मल पता होगा तो वो एब नॉर्मल के बारे में उसको पता चलेगा ना। नॉर्मल ब्लीडिंग क्या है, इन नॉर्मल शी कैन हैव लाइट टू मॉडरेट ब्लीडिंग फॉर 2 to 4 weeks or even up to 6 weeks, but and she can have mild pain, and for that she can take ibuprofen every 6 to 8 hours. She should avoid certain drugs that can make her prone for bleeding, that includes aspirin। ये कुछ आपने ऐसे वर्ड्स बता दिए, आपने उसको क्लियर कर दिया। बट रेड फ्लैग्स यू विल ऑल्सो टेल हर रिगार्डिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स। वो क्या थे, इफ देयर शी सोक्स मोर देन 2 pads per hour, or within 2 hours there are more pads, or there is excessive bleeding, or she develops fever, or develops a foul smelling discharge, and the pain is so severe that is not relieved with medication, she should immediately consult हॉस्पिटल। तो ये जो है इस ये चेकलिस्ट इसके मार्क्स है।
ये वाला तो जो मैंने रेड किया है ये बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। इसीलिए जब आप ऊपर से सिर्फ हेडिंग 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 करके आओगे तो आप इधर तक पहुंच सकोगे अपने 10 मिनट्स के अंदर। अगर आप यहां से डिटेल में चीजों के अंदर अंदर जाओगे आप यहां तक नहीं पहुंचोगे। ये इस मैडम जगह मैंने रेड फ्लैग साइन बताया था। हाँ, अभी नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग कि सबको जो है ये चीज क्लियर हो जाए। आई नो, दैट्स व्हाई आई सेड एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। सो आप उसको रूटीन की थोड़ी बहुत कंट्रासेप्शन को आपने पीछे भी टच कर दिया। अभी अगर आपके पास टाइम है, फॉलो अप भी इट इज ऑल्सो अ रेड थिंग, ये भी आपने नहीं भूलना है कि फॉलो अप हम क्या करते हैं। यूजुअली वी टेल द पेशेंट दैट देयर इज नो रूटीन फॉलो अप रिक्वायर्ड और रूटीन अपॉइंटमेंट, बट शी कैन टेक हर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एट होम। वो खुद घर में भी कर सकती है। इफ दैट इज पॉजिटिव वो आएगी वापस, और वो अगर पॉजिटिव आता है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। एंड अल्ट्रासाउंड उस सूरत में भी करवाएंगे अगर उसको ब्लीडिंग वगैरह होगी। ये था। और आपने स्पेशल कंसिडरेशंस भी बहुत अच्छी बताई। ये जो है ये रेड में है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये रेड वाला आपने मिस नहीं करना है। जो बताने की चीजें थी हेडिंग्स थी। और ये माशाल्लाह एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन डीब्रीफिंग इज ऑल्सो रेड फ्लैग, उसके फौरन बाद बता दिया या आपने उसके साथ ऐड कर दिया। ये पॉइंट्स आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। बाकी आपने, मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज का एक जैसे स्टार्ट होता है वैसा एंड होता है, एंड यू आर एक्सेलेंट इन बोथ। ठीक है। सो अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है मुझे बता सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैडम एम ये है कि हम्म बाज दफा ये कहा जाता है कि हिस्ट्री इतनी लंबी ना लें, मतलब आप जैसे बता रही हैं कि हेडिंग वाइज लें तो वो थोड़ा सा हम्म लंबा नहीं हो जाएगा? नहीं, हेडिंग वाइज ही तो शॉर्ट करता है आपको। क्योंकि वो कहते हैं कि ना फोकस्ड स्टेशन हो, जैसे काउंसलिंग हो या हाँ, इस तरह के तो टीचिंग उसी स्टेशंस हो, तो में, उसमें। हाँ उसी में आपको हेडिंग सेफ रखती है। ठीक है। यही मैं कह रही हूँ कि जब आप हेडिंग बोलते हो, वील इंक्वायर रिगार्डिंग हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, देन वी विल आल्सो इंक्वायर रिगार्डिंग हर पास्ट ऑब्स हिस्ट्री, हर एनी मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्रीज, इज शी जैसे हैविंग एनी ड्रग एलर्जीज। ये सिर्फ हेडिंग्स होती हैं, बताना होता है। ठीक है। ओके, जैसे मैडम काउंसलिंग में जो है वो कहती है, बहुत सारी एग्जामिनर ऑफेंड हो जाती है कि पूरी हिस्ट्री क्यों ले रही है, वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए आई है, रिपोर्ट आ हाँ गया है तो उसको सिर्फ काउंसिल करो। हाँ, नहीं, जब आप हिस्ट्री नहीं लोगे, फॉर एग्जांपल मुझे एक पेशेंट को काउंसिल करना है इसी एमबीए पे, जब मैं हिस्ट्री नहीं लूंगी, मुझे ना उसके ब्लड ग्रुप का पता है ना मुझे कुछ, मैं उसको क्या काउंसिल करूं। ना मुझे उसका पास पता है, ना मुझे ये पता है फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डाउट है कि उसको मोलर प्रेगनेंसी है, तो फिर मैं उसको मैनेजमेंट में ये भी नहीं बताऊंगी कि ये जो है आपने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजना है। बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी आपकी मैनेजमेंट की। ये बात याद रखना। पीछे से फिर आपको वो चेकलिस्ट सारा जो है एम्प्टी जाएगा, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल चीज के ऊपर फिक्स्ड रहेगा। उसमें जो फाइंडिंग्स होंगी पेशेंट की वो मिस हो जाएंगी, आपका वो चेकलिस्ट इग्नोर रह जाएगा। ठीक है। ठीक है मैडम। अब जैसे कल हमारी किसी फ्रेंड ने ग्रुप से ही मुझे मैसेज किया था कि मैडम आप कह रही थी कि चीज़ों की जो है हिस्ट्री लेके जो है, बेशक वो काउंसलिंग का स्टेशन है, तो मैंने उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो इसकी मैंने उसको ये एग्जांपल दी। मैंने कहा अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मेरे सामने पेशेंट जो है वो वल्वल इचिंग के साथ आई है, मैं वो है तो काउंसलिंग की स्टेशन, अब ना मैं उसकी अच्छी सी हिस्ट्री लूं, ना मैं उसको एग्जामिन करूं, एग्जामिनेशन पे आके मुझे पता चला कि पेशेंट को तो एक लंप है, और बाद में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला वो सीए है, तो फिर जाके मैंने उसको काउंसिल किया। अब मैं इन सब चीजों को जंप लगा लूं, क्योंकि मैं, ये तो काउंसलिंग का स्टेशन है, ना मैं इसमें हिस्ट्री लूंगी ना मैं इसमें एग्जामिनेशन करूंगी, अब तो मैं सिर्फ इसको काउंसिल करूंगी, तो भाई कैसे पता चलेगा तुम्हें कि ये है क्या नहीं इसको मैडम, करना। ऐसी वाली काउंसलिंग नहीं, जैसे अगर कोई हाँ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आया है, कोई इनफर्टिलिटी की काउंसलिंग के लिए आया है, हाँ, इस तरह के केसेस में जो है नहीं बेटा, एग्जामिनर वो आज करती आज हैं। आज जो है ना, अपने हाथ में मतलब अपने अंदर ये डाल दो कि विदाउट हिस्ट्री यू कैन नेवर काउंसिल। विदाउट तो मैडम हिस्ट्री, एग्जामिनर को किस तरह हम यार मुझे आज तक किसी एग्जामिनर ने को भी किस नहीं तरह कहा से कि करें? एग्जामिनर गुस्सा हुई है। मतलब मैंने भी 2 अटेम्प्ट दिए। ठीक है। सेकंड में मेरा क्लियर हुआ, लेकिन आज तक किसी भी अटेम्प्ट पे मेरे एग्जामिनर ने मुझे टोका हो कि क्यों हिस्ट्री ले रही हो।
कोई, और ना ही आज तक मुझे किसी मेरी कुलीग ने बताया हो कि उसको टोका हुआ है कि क्यों हिस्ट्री डिटेल से, या क्यों तुमने काउंसलिंग पे एग्जामिनेशन मांगी है। कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल अपने ख्याल। हाँ ये है कि डिटेल ना करो, वही मैं कह रही हूँ, हेडिंग वाइज जाओगी बच जाओगी, बेस लाइन बोलोगी तो बच जाओगी, स्पेसिफिक बोलोगी तो बच जाओगी, ठीक है। ये जो हेडिंग्स बोलने हैं ना, ये बोलोगी तो बच जाओगी, सेफ साइड पे रहोगी। ओके। ठीक है। ये मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग हम करेंगे जो कॉम्प्लिकेशंस है एमबीए की उस पे, ठीक।